براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کورونا ٹاسک فورس اجلاس کے بعد اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ، کافی دنوں بعد ہم ملاقات کر رہے ہیں اور ویسے تو ہوتی رہتی ہے، بٹ یہ اسپیسیفکلی جو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ پریس کانفرنسز میں کیا کرتا تھا آن کرونا، آج وہی سلسلہ ہے۔ آج 26 اپریل 2021 12 رمضان المبارک اور 425واں دن ہے آج جب سے کرونا کا پہلا کیس آیا تھا۔ ابھی تک ہم سندھ کے اندر 35,49,387 ٹیسٹ کرونا کے کر چکے ہیں، کل تک کر چکے تھے۔ آج کی تاریخ میں یعنی کل کا جو رزلٹ آیا وہ آج رزلٹ آیا 16,938 ٹیسٹ ہم نے کیے اور اس وقت تک 35,66,325 ٹوٹل کرونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جس میں کیسز ہمارے پاس 2,77,592 آئے ہیں۔ کل کی تاریخ میں 952 کیسز کرونا پازیٹیو، جو 16,000 ٹیسٹ ہم نے کیے اس میں 952 پازیٹیو کیسز آئے ہیں، اور کل کی تاریخ میں 6 مزید لوگ اس وبا سے اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور یہ ٹوٹل نمبر 4,599 یعنی 4600 سمجھ لیں، اس لیے کہ جب تک یہ ہوا ہوگا آئی ہوپ کوئی ڈیتھ نہ ہوئی ہو، لیکن تقریباً 4600 ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ ہمارے پاس 11,101 ہوم آئسولیشن میں اس وقت پیشنٹس ہیں۔ آئسولیشن سینٹرز ہمارے اب تقریباً ختم ہے، لیکن جو بھی تھوڑا بہت ہے 9 لوگ آئسولیشن سینٹرز میں، اور ہاسپٹلز میں 539 لوگ ہیں۔ اب یہ صورتحال تو یہ نمبرز ہیں، پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں، آج پھر دوبارہ نمبرز بتا دی ہیں۔ اگر اس کو پورے ملک سے کمپیئر کریں تو پورے ملک میں باقی صوبوں میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں 2,32,745 ٹیسٹ ہوئے ہیں اور 21,743 لوگ پازیٹیو ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 15,53,578 ٹیسٹ ہوئے ہیں اور 1,14,077 لوگ پازیٹیو ہیں۔ پنجاب میں 45,01,634 کیس ہوئے ہیں اور اس وقت تک 2,90,788 پیشنٹس پازیٹیو ہیں۔ باقی صوبوں کے مقابلے میں جو کل کی بھی ڈیٹس بتا دوں، کل بلوچستان میں 125 پیشنٹس پازیٹیو ہوئے ہیں، اسلام آباد میں 469، خیبر پختونخوا میں 956، پنجاب میں 2,190 اور ٹوٹل 4,825 پورے پاکستان میں۔ اگر آپ اوسطاً دیکھیں تو ہم اس وقت سب سے کم ہیں پازیٹیو کیسز میں۔ کل کی تاریخ میں 5.62% کیسز پازیٹیو آئے تھے، جبکہ پورے ملک کا ایوریج 9.62 ہے، اور اس میں پنجاب 11.26%، خیبر پختونخوا 12.40%، اسلام آباد 12.60% اور بلوچستان 12.07%، اے جے کے 13.13%، گلگت بلتستان میں 1.5% ہے، پنجاب میں نے بتایا 11.26%۔ اب یہ نمبرز دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ جی ہم ابھی بھی آدھا ہیں باقی صوبوں کے مقابلے میں، لیکن تشویش میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہمیں سندھ صوبے میں ہے اس معاملے پہ۔ اسی سلسلے میں 31 مارچ کو آخری، ایک تو ابھی ہوئی تھی 23 اپریل کو NCC، اس سے پہلے 31 مارچ کو ہوئی تھی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی، جس کو وزیر اعظم صاحب چیئر کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے صوبہ سندھ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی تھی، ایک ڈیمانڈ رکھی تھی کہ آپ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ بند کریں امیڈیٹلی۔
वो नहीं मानी गई, बंद नहीं हुई, और उस वजह से मैं आपको अब जब शहरों का थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा तो मैं कहूँगा, इसलिए कि ज़्यादातर लोग ट्रैवल करके बड़े शहरों में आते हैं ना, कराची, हैदराबाद, सक्खर, यहाँ से ही ट्रैवल होता है। तो उन शहरों का मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 2 हफ्ते में क्या पोजीशन हो गई है। सूबा सिंध, हम ये खुशी भी होती है मैं कहते हुए कि इस पूरी वबा को हैंडल करने में हमने शुरू में जो स्टेप्स उठाए, लॉकडाउन्स किए, जो बाकी सूबों ने फिर उसको फॉलो किया, हमने अपने अस्पतालों की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ाया, और यही वजह, ये रिजल्ट सारे जो खुद वो नंबर्स देते हैं उनसे ही आया है। अगर आप देखें, हमारे पास जो रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद है वो तकरीबन सिंध के अंदर 95% है, 94.16% टू बी एग्जैक्ट, 95% हमारे पेशेंट्स रिकवर हुए। बाकी सूबों में पूरे पाकिस्तान की एवरेज 86% है। बाकी सूबों में ये पोजीशन है कि इस्लामाबाद में 85%, पंजाब में 81%, खैबर पख्तूनख्वा का मैंने नंबर निकाला नहीं, लेकिन तकरीबन यही होगा, 84-85% से ज़्यादा नहीं होगा, और हम उनसे तकरीबन 10% ज़्यादा है रिकवरी में। यानी ये हमारी केयर, हेल्थ केयर के ऊपर बात होती है कि इन्फेक्ट तो हो गए, जो उनको फिर हमने कैसे ख्याल किया। इवन जो अमवात हुई हैं, सिंध की शरह अमवात का जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं वो 1.65% है, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की 2.75% है, गिलगित, बाकी छोटे सूबों को छोड़ दें, बलूचिस्तान की कम है 1.07%, उनकी और बेहतर रही है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो भी वजूहत है, लेकिन अच्छा है कि उनकी कम रही है। तो हमने अपने ये बताया कि अस्पताल की फैसिलिटीज़ को हमने एक्सपेंड किया, हमारे टेस्ट पर मिलियन, वो सारे नंबर्स दूंगा तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, सबसे बेहतर है, हमारे पास फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम घबराए हुए हैं, हम परेशान हैं। और इसकी ये बात हम जो 23 तारीख को एनसीसी की मीटिंग है उसमें भी कह सकते हैं, मैं बताई थी हमने क्यों है। पिछले, मैं ये एक फिगर, आई डोंट नो इतनी दूर से आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो, अगर ये फोकस कर सके इस ग्राफ को, अगर ये दिखा सके, ये ग्राफ अगर फोकस कर सके कि ये पिछले 60 दिन में, ये आपको नजर आ रहा होगा कुछ, कि 3 गुना 4 गुना हमारी पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है जो रोजाना पॉजिटिव आते हैं। 300-325 के दरमियान होते थे और इस वक्त तकरीबन 950 के करीब हो गए। तो क्या हमारे लिए रीजन नहीं कि हम कुछ परेशान हो, कुछ घबराएं? इसी तरीके से हमारी जो पिछले 60 दिन में अमवात थी, ये नंबर है रोजाना के बेसिस पे, और ये हफ्तेवार है, हम देखते हैं एवरेज, हम 0 पे पहुंच गए थे, नहीं तो 2, 3, 4 अमवात ये हो रही थी, और अब ये फिर बढ़ने शुरू हुई हैं। हम 14 डेथ्स हमारी कल परसों हुई थी, और फिर 11, और फिर 2 दिन से 6। इस वजह से हमने सोचा कि हमने खुद कुछ स्टेप्स लेने हैं, और मैंने पिछली बार भी कहा था कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं स्टेप्स लेती तो हमें खुद अब कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमने एनसीसी में भी ये कहा था, और एनसीसी ने कहा है कि जी सूबे भी कोई एडिशनल स्टेप्स लेने चाहें तो वो कर सकते हैं। अब हमारा मसला क्या है कि हमारे जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, बड़े शहर हैं, उनमें पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लें तो सूबा सिंध में कराची ईस्ट, उसमें 21% पॉजिटिविटी है, 21%। उसके बाद हैदराबाद 16%। जी एक दिन की नहीं है, ये एक हफ्ते की मैं एवरेज बता रहा हूं आपको, ताकि ये भी ना हो कि कोई एक दिन उठा के बता दिया। 16% हैदराबाद।
उसके बाद कराची साउथ 12% और कराची सेंट्रल 9%, कुरंगी 5%, मलीर 6%, सक्खर 5%, कराची वेस्ट 6%, बाकी सारे 5 से कम हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको। जो 5 एंड अबव हैं मैंने आपको सारे नंबर्स बताए हैं। सक्खर में तो कल मुझे पता चला है 16 या 17% है, कल की तारीख अगर अलग ले, इसलिए बढ़ रहे हैं नंबर ये। इन सब चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए जब मैं फिर भी बता दूं, इसके बावजूद इस वक्त तक हमारे पास टोटल सूबे में वेंटिलेटर के जो अवेलेबल बेड्स हैं जो कोविड के लिए मख्तस है वो है 664, और इस वक्त आज की तारीख में 47 लोग वेंटिलेटर पे हैं और 164 उन बेड्स पे मौजूद हैं, लेकिन वेंटिलेटर अभी उन्हें लगाया नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पोजीशन में जा सकते हैं, इसलिए हम उनको शिफ्ट कर देते हैं। और हमारे पास टोटल 1872 HDU बेड्स हैं और उसमें 296 यानी जिन पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है 296 उसमें फील्ड है। 453 हमारे पास ICU बेड्स वेकेंट है और 1576 HDU बेड्स वेकेंट है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें, ये फिर से ग्राफ दिखाता हूँ अगर इसको फोकस कर सकें, कि ये पिछले 15 दिन में बल्कि 12 दिन में ये ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, ये ऑक्यूपेंसी का। तो हमें एक खतरा नज़र आ रहा है कि हमें देखना चाहिए। लेकिन पूरे मुल्क को अगर आप देखते हैं सामने, तो हमारी सिचुएशन इस वक्त अल्लाह ताला की शुक्र है बेहतर है। कुछ और शहरों के मैं आपको बता दूं, मर्दान में 30%, 31% पॉजिटिविटी है और उसके तकरीबन जो सारे बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। इसी तरीके से पेशावर में 24% के करीब पॉजिटिविटी है, सुआबी में 20% है, पंजाब के लाहौर में 18% है 17.96। तो अगर और फिर उनकी बेड की मैं नंबर्स नहीं दूंगा, इधर सारे हैं मेरे पास, कि उनके यहाँ इस वक्त बहुत कम रह गए हैं बेड्स जो अवेलेबल हैं। हमारे पास इस वक्त तक कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि सब बेड भर जाएं उसके बाद हम पाबंदियां और सख्तियां शुरू करें। अल्लाह ताला करे कि हम इससे ज़्यादा ये बेड्स की ऑक्यूपेशन ना हो। लेकिन इसी वजह से फिर हमने आज टास्क फोर्स की मीटिंग की। एक मीटिंग 23 तारीख को भी की थी जिस दिन NCC थी, और उसी दिन हमने फैसला किया था कि मंडे को हम तब तक हम सब सूरत हाल असेस करें, हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, पुलिस, रेंजर्स, इनके साथ करके सलाह मशवरा और आगे स्टेप्स कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए बताएं कि क्या करना चाहिए। बिफोर आई गो देयर, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारे आज स्टेप्स हमने फैसला किया है। मैं थोड़ा सा आपको वैक्सीन की पोजीशन भी बता दूं कि क्या सिचुएशन है। हमें 5,62,000 वैक्सीन डोजेस फेडरल गवर्नमेंट से मिले हैं साइनोफार्म के। ये जो 2 डोज की होती है तो 21 दिन बाद दूसरी लगानी पड़ती है, और उसके अलावा 11,000 डोज मिले हैं कैंसाइनो जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है, और 80,000 डोज मिले हैं साइनोवैक के। ये 2 दिन पहले मिले हैं, 23 अप्रैल को हमें मिले हैं 80,000। जो पहले मिले थे हमें 5,62,000, उसमें से हम 5,41,809 डोजेस अपने डिस्ट्रिक्ट्स को इशू कर चुके हैं, और एज ऑफ येस्टरडे 4,45,000 डोजेस लग गए, जिनमें 2,90,000 जो है वो सिंगल डोज है, और उनमें से फिर 1,55,000 को दोनों डोजेस लग गए। कैंसिनो के जो 11,000 डोज थे उसमें से 10,930 लग चुके हैं, और ये हमने प्राइमरली जेल्स में लगाए, प्रिजन्स में जो हमारे कैदी हैं उनको लगाए। साइनोवैक के 80,000 डोजेस हमें मिले हैं, वो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लगाने के लिए। और आज जो है 1 लाख डोज हमें और साइनोफार्म का फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है मिलेंगे, और 2 दिन बाद
2,70,000 और 1,70,000 और मिलेंगे, टोटल 2,70,000 डोजेस। और उसके लिए हमने सारी जो तैयारी है वैक्सीनेट करने के लिए, वैक्सीनेशन सेंटर्स और उनमें जो भी इश्यूज आए उनको भी रिजॉल्व करते हुए हम आगे चल रहे हैं। टोटल 3 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे पास रजिस्टर्ड, जिसमें से 1,23,000 को पहला डोज लगा है और 85,000 दोनों डोज लग चुके हैं। और ये वैक्सीन की पोजीशन है। हमने बड़ी कोशिश की कि खुद वैक्सीन मंगाएं और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हालात दुनिया की ये हैं कि सिवाय चाइना के और शायद रशिया के कोई और जगह से वैक्सीन मिल नहीं रही है। और चाइनीज़ प्रेफर करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ डील करने की। हमने काफ़ी कोशिश की है कि हमें अलग से कुछ मिले, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो डील करते हैं तो वो वैक्सीन उनको मिल रही है। जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, वो उसका इशू ये है कि उसकी कीमत कमर्शियल पर्पस के लिए तो बता दी गई है, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक होती है प्राइस, वो अभी तक डिटर्मिन नहीं की गई है। इस वजह से हम उसको नहीं देख सक रहे। इसके बावजूद आज की मीटिंग में हमने दोबारा एक कोशिश की है कि हम अपनी इंस्टीट्यूशन से कहें कि वो ये वैक्सीन्स इंपोर्ट करने का कोई तरीका देखें ताकि हम और लगा सकें। एक चीज़ और जो काफ़ी कंसर्न की बात ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जो कैफियत हो गई थी उसकी बात हुई है ऑक्सीजन। उसके बारे में भी हम अवेयर हैं और हम देख रहे हैं। मेरा ख्याल है बाकी डॉक्टर साहब कंफर्म करेंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर सिंध के अंदर सिर्फ 3 अस्पताल हैं जिनमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स अपने हैं, और ये तीनों हुकूमत सिंध के अस्पताल हैं। किसी प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े अस्पतालों में, आगा खान में नहीं है आपका ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। हमारे पास ट्रॉमा सेंटर, गंबट और ओझा, इन 3 जगह पे अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो जनरेट करते हैं। उसके अलावा भी जो सिंध के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन फैसिलिटीज़ हैं वो एडिक्वेट हैं कि हम अपने अस्पतालों को मुहैया कर सके। लेकिन इसके साथ साथ हमने बजट में भी डाला हुआ है और हमने उसको एक्सपीडाइट करने के लिए कहा है कि हम जो भी ऑक्सीजन प्लांट्स, इस वक्त शायद यूके में एक प्लांट अवेलेबल है जिसका ऑर्डर वगैरह प्लेस किया है, प्लेस करना है, इटली में भी एक इटली में है, उसका उन्होंने एक कीमत तो भेजी है। हम चाह रहे हैं उसको एयरलिफ्ट कराएं ताकि जल्द से जल्द उसको लगाया जाए। वो आज हमें कीमत आजकल में मिल जाएगी। हम अपने बाकी जो प्लान ये है कि सिंध हुकूमत की सारी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स अपने लगाने हैं हमने, और उस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे बाकी सूबों का नहीं पता कि उनके ऑक्सीजन प्लांट्स अस्पतालों में हैं कि नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर 3 अस्पतालों में, तीनों पब्लिक सेक्टर में है। और इस चीज़ को हमने बड़ा नज़र में रखा हुआ है। एक आप सबके तवज्जुह से आई थी बात कि स्टील मिल में एक ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है, 2015 से उसको खोला जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट से उस पर हुई ये बात और वो उसको देख रहे हैं, और ऑलरेडी आई थिंक कोई टीम वगैरह पहुंची है, उसको देखेंगे चालू स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं उस ऑक्सीजन प्लांट को। तो ये हो गई वैक्सीन की। टेस्टिंग का जहाँ तक बात है, 16,000 से ऊपर टेस्ट हमने किए हैं कल, और हमारी कोशिश ये है कि इनको और बढ़ाया जाए ताकि हम वही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकें, लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे पहले हमने इस वबा पे एक मैनेजमेंट इस तरीके की थी कि कुछ ना कुछ अंडर कंट्रोल थी, वो अंडर कंट्रोल रहे। अब जी स्टेप्स हम क्या ले रहे हैं? सबसे पहले तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमने आज से यानी कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा सब सरकारी दफातर में। वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट ने 50% का कहा है, हमने मैक्सिमम 20% पे कहा है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि 20% से ज़्यादा, अगर और कम की ज़रूरत है तो और कम करेगा, लोग ना आए। और दफातर के औकात भी चेंज किए, 9 बजे से 2 बजे तक, या 9 बजे से 2 बजे तक, 9 से 2 कर दिए हैं दफातर के औकात। और वो सेक्रेटरी इंश्योर करेगा
कि 20% से ना बढ़े अटेंडेंस। उसके साथ साथ छुट्टी नहीं है, सारे मुलाजमीन को अगर वो कराची में काम कर रहे हैं तो कराची में ही रहना है, अगर वो और शहरों में काम कर रहे हैं तो उधर ही रहना है, छुट्टी नहीं है। और उनको फ़ोन पे हर वक्त अवेलेबल रहना है, ऑफिस आवर्स में ख़ास तौर पे। किसी वक्त भी किसी की ज़रूरत पड़े तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है उनको बुलाया जा सकता है। तो छुट्टी नहीं है, लेकिन दफातर मतलब वर्क फ्रॉम होम टाइप चीज़ है कि काम दे दिया जाएगा और वो करके और वो किस तरीके से सबमिट कर लेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हम मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं हम। ये कल परसों से एक दो दिन लगेंगे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, ताकि वो जो स्कूल अपने ऑनलाइन करना चाहते हैं काम उसको दोबारा कुछ कर लें, लेकिन ये और चले गए हैं कि इनको बंद करने की तरफ हम जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पहले भी बंद थे, अभी भी बंद है। बंद होने के बावजूद और आउटडोर डाइनिंग मना करने के बावजूद आउटडोर डाइनिंग चल रही है। हमने इंतज़ामिया से कह दिया है कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए और आउटडोर डाइनिंग बंद करें। अब उसमें ज़रूर एक आध दिन लगेगा इम्प्लीमेंट, मैं तो चाहूँगा आज अफ्तार के बाद से ये इम्प्लीमेंट हो जाए और यही डायरेक्शंस दिए हैं। आपके तवज्जुद से मैं सबको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आउटडोर डाइनिंग बंद है, टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुली है, कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कम से कम, मैं अब उस पर भी आता हूँ, आज मैंने बात की थी। तो आउटडोर डाइनिंग बंद रेस्टोरेंट्स में। प्राइवेट, अच्छा नहीं, मैं पहले सरकार की जो सारी चीज़ें ना, प्रिजन्स के अंदर विजिटेशंस ख़त्म कर रहे हैं हम जब तक नए बात हो। ये तो हो गई गवर्नमेंट साइड पे जो इंटरवेंशंस हैं। और प्राइवेट ऑफिसेज में वैसे ही 50% की एनसीओसी ने एक लिमिट डाली है कि 50% से ज़्यादा लोग ना हो। इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। मैं आप लोग को तवज्जुद से कहूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट करें। हम अब इसको मॉनिटर करेंगे और अगर कोई दफ्तर 50% से ज़्यादा लोग बुलाते हैं और इसकी वायलेशन करता है तो वो दफ्तर सील कर दिया जाएगा। ये प्राइवेट दफातर की बात है। शॉपिंग का एक बड़ा इशू होता है। शॉपिंग सेंटर्स के लिए एक तो टाइमिंग, ये बिल्कुल फाइनल टाइमिंग्स हैं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सुबह फजर के बाद से 6 बजे कर लें, फजर के बाद कर लें, शाम 6 बजे तक आप खुल सकते हैं, लेकिन एसओपीज के साथ। आपके दुकान में जो दाखिल होगा उसको मास्क पहनना ज़रूरी है, मास्क के बगैर दुकान में दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स मास्क के बगैर दुकान में दाखिल होता है तो उसकी वायलेशन एसओपी की उस दुकानदार के ऊपर आएगी। हमने ये भी कहा है कि हर दुकान को, हमने ये पहले किया हुआ है इम्प्लीमेंट, हर दुकान को अपनी कैपेसिटी का 50% से ज़्यादा बंदा अंदर नहीं दाखिल होने देना है और उन्होंने ये बाहर लिख के लगाना है। अब उन्हें 2-3 दिन देंगे, ऐसे नहीं कहूँगे आज रात से, आज से अभी से शुरू हो जाएंगे। आप अपनी दुकान के बाहर, ताकि इम्प्लीमेंट अगर करने मैं जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ, मुझे पता तो चले ना। वो कहेगा कि जी मेरी 100 की कैपेसिटी है या 10 की कैपेसिटी और 5 से ज़्यादा नहीं आ सकते, और वो इंश्योर करेगा कि 5 से ज़्यादा लोग उस दुकान में एक वक्त में ना जाएं। जब 5वां आदमी निकलेगा तो बाहर अगर कोई खड़ा होगा तो वो आ सकेगा अंदर। ये भी जिम्मेदारी दुकानदार की है। ज़ीरो टॉलरेंस, अगर कहीं कोई वायलेशन करेगा तो हमें मजबूरन उस दुकान को बंद करके सील करना पड़ेगा। ये बता दें, हम आगे हम जो एसओपीज फॉलो करेगा उसको पूरी इजाज़त दे रहे हैं कि वो सही तरीके से कारोबार अपना करे, लेकिन ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि सबकी सेहत का, सबकी जान का ख्याल रखते हुए आप वो एसओपीज फॉलो कराएं अपने प्रेमिसेस में। ट्रांसपोर्ट, आज से 3 दिन बाद थर्सडे से
ہم تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں. انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی سندھ کے اندر, اور میں باقی صوبوں کے چیف منسٹر سے بھی کوشش کر کے آج بات کروں گا, انہیں اپنے اس فیصلے سے پرسنلی بھی آگاہی دوں گا تاکہ انہیں ٹائم بھی مل جائے کہ لیکن جو ٹرانسپورٹ چلے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی سب بیٹھے اور کا 3 دن بعد بند ہو جائے گا تو بس کی سواری کر لیں. ان کو ایس او پیز فالو کرنی ہے اگلے 3 دن 4 دن جو یہ ہے, جس میں آلریڈی کہا ہوا ہے کہ ماسک کے ساتھ بیٹھ بڑے رائیونٹ کا اجتماع ہونا ہے یا ہمیں اس کے بارے میں بھی کوئی پراپر ایس او پیز کا تعین کیا جائے جو کہ امپلیمنٹ بھی ہو سکے. یہ آج کی میٹنگ جو ابھی ہو رہی ہے اس وقت اس میں فیصلہ ہوگا, اس لیے میں اس کے بارے میں اور زیادہ بات نہیں کرتا. ہم نے اور کیا کیا ہے ایئرپورٹس کے اوپر. سندھ حکومت نے یہ لیڈ لی تھی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پہلے, جب سول ایویشن نے کہا کہ ان کے پاس وہ ویئر ود آل نہیں ہے, وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو آنے والے پیسنجرز ہیں ان کو وہ سنبھال سکیں, تو سندھ حکومت نے اپنی ڈیسکس قائم کی تھی, خاص طور پہ کراچی ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل فلائٹ جہاں سے آ رہی تھی, اور منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہم نے اس کو دوبارہ اور بیف اپ کر دیا ہے, اور اب ہر پیسنجر کو ہم ٹیسٹ تو نہیں لیکن سمپٹمیٹک چیک کریں گے, اور جس کو پہ کوئی چیک ہے اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہر پیسنجر کا ریکارڈ لے کے اور اس کو فالو اپ کریں گے کہ بھائی اگلے 10-15 دن میں آپ کو کوئی سمپٹمس تو نہیں ڈیولپ ہوئے, تاکہ اس طریقے سے اس کو فالو اپ کیا. ریکویسٹ کروں گا, ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اگلی جب بھی این سی سی کی میٹنگ ہو اس سے پہلے ہی ہم این سی او سی میں بھی دوبارہ کہیں گے کہ ہم نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ, پیسنجر ٹرانسپورٹ بند کی ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ اس کا اطلاق پورے پاکستان میں ہو, اور عید اور اس کے 1 ہفتے بعد تک ہم ٹرینز اور ڈومیسٹک فلائٹس, انٹرنیشنل فلائٹ سے پہلے بند ہونی چاہیے, یہ بھی بند کریں. میں بتاتا ہوں سر, یہ ہم بند کریں. یہ دیکھیں ہم نے اس پہ کافی حد تک مینج کر لیا تھا. دوبارہ جب ہم کیئر فری ہو گئے تب یہ مرض دوبارہ ابھرا ہے, اور خاص طور پہ لوگ جو حقائق جو فیکٹس بتا رہے ہیں, پنجاب میں, آزاد کشمیر میں اس کی انسیڈنٹ زیادہ اس لیے ہوئی کہ وہاں کافی لوگ یو کے سے, جو یو کے ویریئنٹ بھی اس لیے کہلاتا ہے, وہ یو کے میں بنا نہیں تھا لیکن ڈیٹیکٹ انہوں نے کیا. وہاں جب سکیئر ہوا اور یو کے نے بندشیں شروع کر دیں تو وہاں سے لوگ اٹھ کے آ گئے بہت زیادہ, اور اس سے پھیلا یہ وائرس. تو جب تک پوری دنیا نے اپنے بارڈرز کنٹرول کیے, ہمارے اپنے ملک کی انٹری کئی ملکوں میں بند ہو گئی ہے, اور ہم نے سب کو کھلے بازو with open arms we want to invite everybody over. میرا خیال ہے یہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہم نہ کھیلیں. وفاقی حکومت سے آپ کی توجہ سے پھر میں کہوں گا کہ انٹرنیشنل فلائٹس بند کریں. بڑی عجیب باتیں بھی میں نے سنی ہیں, میں ریپیٹ کروں گا تو بڑا عجیب سا لگے گا. ایک جو ابھی این سی سی کی میٹنگز ہوئی تھیں ان میں کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی عید کا تو موقع ہے, جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے تو آپ کیسے بند کریں؟ ہم کہتے ہیں جی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہم اور لوگوں کی تو ہے, وہ لاہور آتے ہیں شاپنگ کرنے, تو آپ کیوں بند کر رہے ہیں, کیسے کریں گے؟ یہ باتیں ہوئی ہیں, اور یہ باتیں ہوئی ہیں ٹرینس تو ڈبل کر دینی چاہیے تاکہ لوگ مطلب میرے ذہن میں وہ نہیں ہے, شاید کسی اور کو سمجھ آ رہی ہو یہ بات, لیکن میری سمجھ میں نہ یہ پہلے آئی تھی نہ اب آ رہی ہے یہ بات کہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں کہ بس سب کو ملنے جلنے دیں, سب کھلا کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا تو ہماری ہندوستان جیسی صورتحال ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے. تو ہم دوبارہ ایک سٹیپ لے رہے ہیں. میں آج جیسے میں نے کہا کوشش کروں گا, باقی وزراء اعلیٰ سے بھی بات کروں گا کہ جی ہم یہ سٹیپس, اور این سی سی نے اجازت دی تھی کہ کوئی صوبے اپنے سٹیپس لینے چاہیں تو وہ لیں. اللہ نہ کرے اگر ہم ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہوتے, اس لیے کامیابی اب ساری
मैं आपके तवज्जुह सबसे कह रहा हूँ कि लोगों के ऊपर है, जो शॉपकीपर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनके ऊपर है कि वो एसओपीज को कितना अमल दरामद करते हैं। और अगर वो अमल दरामद ना करा सके और हम भी फेल हुए अमल दरामद कराने में एज ए गवर्नमेंट, तो हमें एस्केलेट करना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है ना। हम लोगों को इस वबा में मुब्तला होता और अल्लाह ना करे अपनी जान गंवाते हुए देख तो नहीं सकते और चुप करके बैठे रहे और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करें, वो हमसे नहीं होगा। बहुत दिन इंतज़ार किया कि कोई प्रॉपर स्टेप्स लें। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर हम फेडरल गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर नहीं स्टेप्स लेते हम लेंगे। अब मैं आप मीडिया के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये अगर मैसेज फैलाएं कि जी अब इसकी कामयाबी, पहले भी लोगों ने, हम कामयाब, हमारा मुल्क कामयाब हुआ था, मैं किसी एक शख्स को उसका क्रेडिट नहीं दूंगा, इसलिए कि पूरा मुल्क इकट्ठा होके और थोड़ा सा घबराया।